examples of centers like Vaishali. The Rig Veda, one of the world's oldest scriptures, says, Ano Bhadraha Kratavo Yantu Vishwataha. It means, let good thoughts come to us from all directions. This openness to ideas is the core of democracy. India has over 2,500 political parties. I repeat, 2,500 political parties. Twenty different parties governing different states. 22 official languages, thousands of dialects. This is also the reason that people who came to India have always been welcomed with open hearts. The same spirit helps Indians integrate easily wherever they go. Even in Ghana, they have blended into society just like sugar in tea. Distinguished members, the histories of India and Ghana bear the scars of colonial rule, but our spirits have always remained free and fearless. We draw strength and inspiration from our rich heritage. We take pride in our social, cultural, and linguistic diversity. We built nations rooted in freedom, unity, and dignity. Our relationship knows no bounds. And with your permission, may I say, our friendship is sweeter than your famous sugar loaf pineapple. With President Mahama, we have decided to elevate our ties to a comprehensive partnership. Friends, the world order created after the Second World War is changing fast. The revolution in technology, the rise of the global south, and shifting demographics are contributing to its pace and scale. The challenges such as colonial rule that humanity has faced in the earlier centuries still persist in different forms. The world is also facing new and complex crises such as climate change, pandemics, terrorism, and cybersecurity.
institutions created in the last century are struggling to respond. The changing circumstances demand credible and effective reforms in global governance. Progress cannot come without giving voice to the global south. We need more than slogans. We need action. That is why, during India's G20 presidency, we worked with the vision, one earth, one family, one future. We put emphasis on Africa's rightful place at the global high table. We are proud that the African Union became a permanent member of the G20 during our presidency. Friends, for India, our philosophy is humanity first. We believe in Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Paschantu, Ma Kaschid Dukh Bhag Bhavet. It means, may all be happy, may all be free from illness, may all feel what is auspicious, may no one suffer in any way. This philosophy embodies India's approach to the world. It guided our actions during the COVID pandemic. We shared vaccines and medicines with over 150 countries, including our friends in Ghana. We launched Mission Life, Lifestyle for Environment, to address climate change and promote sustainable living. This inclusive spirit powers our global initiative like One World, One Sun, One Grid, and One World, One Health for a healthier planet. International Solar Alliance to encourage solar energy and sustainability. International Big Cat Alliance to protect wildlife. And the Global Biofuel Alliance to advance clean biofuels and cut carbon emissions. I am glad that Ghana, as a founding member, will host the African regional meeting for the International Solar Alliance this September. This demonstrates our shared belief that the world is one family. Distinguished members, over the past decade, India has seen a major transformation. The people of India have reposed their faith in peace, security, and development. Last year, they re-elected the same government
For the third consecutive time, something that happened after more than 6 decades. Today, India is the fastest growing emerging economy. On the foundations of stable polity and good governance, India will soon be the third largest economy. We already contribute nearly 16% to global growth. Our demography is paying its dividend. India now has the world's third largest startup ecosystem. India is an innovation and technology hub where global companies want to converge. We are recognized as the pharmacy of the world. Indian women today lead in science, space, aviation, and sports. India landed on the moon, and today an Indian is in orbit giving wings to our human space flight mission. और कितना सुखद संयोग है कि भारत के कई गौरव भरे क्षण में अफ्रीका जुड़ा हुआ है। जब भारत ने चंद्रयान के चांद के साउथ पोल पर लैंड किया तो उस दिन भी मैं अफ्रीका में था, और आज जब एक भारतीय एस्ट्रोनॉट मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, मैं एक बार फिर अफ्रीका में हूं। अफ्रीका हैज बीन कनेक्टेड to many of India's proudest moments in space. When India Chandrayaan landed on the moon's south pole, I was in Africa. And today, as an Indian astronaut conducts experiments on board space station for the welfare of humanity, I am once again in Africa. This is no ordinary coincidence. It reflects the deep bond we share, our common aspirations, and our shared future. Our development is inclusive. Our growth touches the lives of every Indian. The people of India have resolved to make India a developed nation by 2047, when we celebrate 100 years of independence. As Ghana continues to pursue the path of progress and prosperity, India shall walk with you shoulder to shoulder on this road. फ्रेंड्स, आज ग्लोबल उठापटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। उसी प्रकार से भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा, दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा। वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा। In these times of global uncertainty,
India's democratic stability shines as a ray of hope. India's rapid progress is a catalyst for global growth. As the world's largest democracy, India is a pillar of strength for the world. A strong India will contribute to more stable and prosperous world. After all, our mantra is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. It means together for everyone's growth, with everyone's trust and effort. India remains a committed partner in Africa's development journey. We support Africa's Development Framework Agenda 2063 to secure a bright and sustainable future for its people. Africa's goals are our priorities. Our approach is to grow together as equals. Our development partnership with Africa is demand-driven. It is focused on building local capacities and creating local opportunities. Our objective is not just to invest, but to empower, to help develop self-sustaining ecosystems. It is my honor to give further momentum to this partnership. In 2015, we hosted the India-Africa Summit. President Mahama was one of our esteemed guests. In 2017, India hosted the annual meeting of the African Development Bank. We have expanded our diplomatic presence to 46 countries across Africa. Over 200 projects across the continent enhance connectivity, infrastructure, and industrial capacity. Every year, our India-Africa Business Conclave generates new opportunities. In Ghana, we inaugurated the Tema-Pakdan railway line last year. It is the largest infrastructure project in this part of the African region. We welcome Ghana's own efforts to accelerate economic integration under the African Continental Free Trade Area. Ghana also holds great potential to become an IT and innovation hub in the region. Together, we will shape a future full of promise and progress. Distinguished members, free and fair elections are the soul of any democracy. It is encouraging to see our electoral commissions working closely together. I am confident that India's Election Commission will be honored to share its experience in conducting the world's largest elections with full trust and transparency. Parliamentary exchanges are also a cornerstone of the relationship between our two democracies. I recall the Commonwealth Parliamentary Association meeting held in Accra in 2023.
It welcomed the largest Indian parliamentary delegation to Ghana, including state legislators in India. We deeply value such vibrant dialogue. I welcome the establishment of Ghana-India Parliamentary Friendship Society in your parliament. I propose to further reinforce our parliamentary ties. I invite you to visit the new Parliament of India. You will be able to see the bold steps we have taken to reserve 1/3 of seats in the Indian Parliament and state assemblies for women. You can witness the debate and discussions that are the hallmark of the Indian democracy. I assure you, they are as spirited and passionate as the game of your beloved Black Stars. Friends, India and Ghana share a dream where every child gets opportunities, where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Dr. Nkrumah had said, and I quote, "I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me." Unquote. In the same way, India carries Africa in its heart. Let us build a partnership not only for today, but for generations to come. Thank you. Meda Muwase. तो घाना की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन, और आपने देखा किस तरीके से बाकायदा वहां सब खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह शानदार संबोधन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और घाना के संबंधों से लेकर किस तरीके से भारत, जो कि लोकतंत्र की जननी है पूरी दुनिया के लिए, और कैसे लोकतंत्र हिंदुस्तान में सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है, और कैसे हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मतलब मानवता सबसे पहले और पूरा विश्व एक परिवार, यही संदेश है। उसी का ब्यौरा घाना की संसद से पूरी दुनिया के सामने रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, और यहां पहुंचकर अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव आज आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे, और इस दौरान कार्यक्रम के मंच से अखिलेश यादव ने कहा, वो आरोप लगाते हैं कि हमारे रिश्ते डी कंपनी से हैं, लेकिन सच ये है कि वो डी से घबराते हैं। डी से दिल्ली, डी से डिप्टी सीएम, दोनों डी से सीएम योगी घबराते हैं। ये कहते हैं कि हम लोगों के डी कंपनी से जुड़े हुए हैं तार। सच्चाई तो ये है कि डी से बहुत घबराते हैं, दिल्ली से बहुत घबराते हैं लखनऊ वाले। सच्चाई तो ये है कि डी से बहुत घबराते हैं, न केवल दिल्ली से घबराते हैं बल्कि 2 डिप्टी सीएम भी हैं, डीसीएम, 2 डीसीएम हैं, उनसे भी घबराते हैं, इसलिए उन्हें डी बहुत याद आती है। तो योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, कह रहे हैं कि योगी सरकार जो है वो डी दिल्ली सरकार से डरती है, और अपने दोनों डिप्टी सीएम से भी योगी आदित्यनाथ, नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्हीं पर हमला और कटाक्ष किया।
कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में दुकानदारों की पहचान को लेकर विवाद जारी है और विवाद के बीच बार बार एक नाम जो सामने आ रहा है वो है स्वामी यशवीर का। विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं और इस पूरे प्रकरण में यशवीर का जो पक्ष है वो जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी चित्रा ने। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। विवाद है नेम प्लेट का। दरअसल यूपी सरकार ने कांवड़ रूट में खाने पीने की दुकानों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश के मुताबिक कांवड़ मार्ग पर हर दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा और खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री नहीं होगी। ऐसा ही आदेश उत्तराखंड सरकार ने भी जारी किया। इन सब के बीच एक और नाम सामने आया, योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर का। पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर के एक ढाबे में स्वामी यशवीर की अगुवाई में एक ढाबे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। आरोप है कि पहचान अभियान चलाने के दौरान स्वामी यशवीर की टीम ने पंडित जी वैष्णव ढाबे के एक कर्मचारी के साथ जबरदस्त तरीके से बदसलूकी की। स्वामी यशवीर महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि बिना प्रशासन की अनुमति के जाकर अलग अलग ढाबों में ये आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और एक जगह इन्होंने पैंट उतरवाकर हिंदू और मुस्लिम जांच करने की कोशिश की है। इस वक्त खुद वो हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी यशवीर जी, आपको इसकी अनुमति कहां से मिली कि आप जगह जगह जाकर लोगों के आधार कार्ड चेक करें और ये जानें कि वो हिंदू है या मुसलमान? सर्वप्रथम तो मैं सन्यासी हूं और सन्यासी को किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरे, मैं भारत का नागरिक हूं। भारत के नागरिक को किसी का भी आधार कार्ड जिस पर शंका हो देखने का अधिकार है। आधार कार्ड इसीलिए बनाया जाता है, यदि इसको किसी को भी देखने का अधिकार न हो तो सरकार को फिर यह आधार कार्ड की जो व्यवस्था है इसको बंद कर देना चाहिए। महाराज जी, ये काम पुलिस प्रशासन का है, लेकिन आप खुद प्रशासन की तरह जाकर आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, ये आपके हिस्से में नहीं आता। ये जानकारी आपको भी होगी। देखिए, यदि आपके यहाँ कोई आ जाए, जब तक आप उसका आधार कार्ड नहीं देखेंगे तब तक उसको आप अपने कार्यालय में प्रविष्ट नहीं होने देंगे। और सनातन धर्म का भी एक विषय है, क्योंकि हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग जो उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश को जाता है, वहाँ से हमारे सनातन धर्म के लोग बहुत बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। और कांवड़ यात्रा मार्ग पर हमारे शिव भक्त कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेकर के कांवड़ के माध्यम से वो अपने गंतव्य स्थान की तरफ को जाते हैं। और रास्ते में जब उनको भूख लगती है तो वे कहीं भी भोजन करने के लिए जब जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि वो हमारे ही सनातन धर्म का कोई होटल हो, ढाबा हो, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान हो, और जब उसे सामने किसी हमारे देवी देवता के नाम का या सनातन धर्म के लोगों का बोर्ड दिखाई देता है तो वो वहाँ भोजन करने के लिए चला जाता है। लेकिन वो जो हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं का, सनातन धर्म के लोगों का बोर्ड है, वो दुकान चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं बल्कि मुस्लिम होते हैं। और आप चैनल वालों के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली है सारे भारत के सनातन धर्म के लोगों को कि जो थूकने मूत्र करने वाला इस्लामी जिहादी गैंग है वो हिंदुओं के भोजन में थूकने का, मूत्र करने का, गौ मांस मिलाने का या ऐसी औषधि मिला भोजन सनातन धर्म के लोगों को करा दे, जिससे कि उस भोजन को करके, उस औषधि मिले भोजन को करके सनातन धर्म का पुरुष नपुंसक हो जाए और उनकी महिलाएं बांझ हो जाए। जब इस तरह की घटनाएं आई तो हम लोगों ने अपना कर्तव्य समझते हो, क्योंकि समाज के अंदर, देश के अंदर जब भी कोई अराजकता होती है, सनातन धर्म को और भारत राष्ट्र को यदि किसी भी प्रकार का खतरा होता है और वो खतरा पहुंचाने वाली चाहे बाहरी ताकत हो या आंतरिक ताकत हो, एक सन्यासी का धर्म होता है सनातन धर्म की रक्षा के लिए और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए वो आगे आए। तो जो सन्यासी सनातन धर्म की और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे नहीं आता तो समझिए वो अपने सनातन धर्म का, वो अपने सन्यासी धर्म का पालन नहीं कर रहा है। आपको यह पता होगा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, नोटिस आया है आप लोगों को, आप लोगों ने जो काम किया है उसके एवज में।
हाँ मेरी सुनिए, मैं अपने संन्यास धर्म का पालन कर रहा हूँ और नोटिस आया है, कानून के अनुसार उसका उत्तर देंगे। और यदि हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया तो उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर नहीं, सारे भारत के अंदर सनातन धर्म के लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे और उन जिन 6 क्रांतिकारी नौजवानों के ऊपर के पास नोटिस पहुंचे हैं उनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हम और सारा भारत का हिंदू समाज उनके साथ है। और मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए पैंट उतारने का, पिटाई करने का, वो झूठा आरोप है। हमने पहले दिन कहा था कि जिस समय की ये बातें हो रही है, जब वहाँ पर हम थे तो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया वहाँ पर थी। यदि ऐसी घटनाएं होती तो मीडिया के कैमरे में वो कैद हो जाती, क्योंकि सबके कैमरे खुले हुए थे। अब मेरा अगला सवाल है स्वामी यशवीर जी, असदुद्दीन ओवैसी, एसटी हसन, वो तो तुलना कर रहे हैं कि आतंकवादी वहां पहलगाम में पैंट उतरवाकर जांच करते हैं और इधर आप पैंट उतरवाकर जांच कर रहे हैं कि हिंदू हैं या फिर मुसलमान। वो कह रहे हैं दोनों में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। देखिए, जब इस तरह की बातें आएंगी, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए मुसीबत भी आएंगी, आरोप भी लगेगी, जेल भी खानी पड़ेगी और गोलियां भी खानी पड़ेगी। लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए, चाहे हमें कोई गुंडा कहे, चैनल वाले भी और या दूसरे, और ये विपक्ष के नेता, ये मुस्लिम परस्ती नेता, चाहे हमें गुंडा कहे, पहलवान की घटनाओं से जोड़े, आतंकवादी कुछ कहे, हमारे ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। स्वामी यशवीर जी, आप धमकाएंगे, सरेआम जाकर आधार कार्ड चेक करेंगे। योगी सरकार अपना काम कर रही है इस बाबत। अगर स्वामी जी ही जाकर आधार कार्ड चेक करने लगेंगे तो सरकार और प्रशासन किस बात का है प्रदेश में? नहीं, हाँ देखिए, हमने धमका नहीं, हमने ये केवल ये कहा भाई तेरा जो नाम है अपना नाम वो लिखिए, हमारे धर्म के नाम का दुरुपयोग मत करिए, इस पंडित शब्द को हटा दे। और नहीं हटाएगा तो फिर धरना प्रदर्शन, ये तो अब एक नागरिक का कर्तव्य है। जब उसकी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा तो धरना प्रदर्शन कोई अपराध नहीं होता। प्रजातंत्र में धरना प्रदर्शन शांति रूप में करिए और फिर उनकी सुनवाई होगी। यही हमने कहा था, यही हमारा कहना है। और मैं तो ये कहता हूँ, खाद्य अधिनियम के अंतर्गत 2006 में ये नियम बनाया गया था कि कोई भी फूड लाइसेंस वाला अपना फूड लाइसेंस अपने खाद्य पदार्थ की दुकान पर वहां लगाएगा जहां सबकी दृष्टि पड़ती हो। और यदि वो छुपा करके कहीं रखेगा तो 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक का जुर्माना उसके ऊपर सरकार कर सकती है। 2011 में इसको लागू किया गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और हम जो कार्य कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, सरकार का, प्रशासन का सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। मैं फिर उसी सवाल पर आ जाती हूं ना, पुलिस पकड़कर ले जाएगी, पुलिस प्रशासन का काम आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी ठेकेदारी कांवड़ यात्रा की आपने उठा ली है अपने कंधों पर। देखिए, हमने पहले ही कहा है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए, चाहे मुसीबत आए हमारे, चाहे गोली मारे या हमें जेल में डाले या फांसी डाले, लेकिन हमें इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि देश धर्म की रक्षा करना सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और इस कर्तव्य पालन में यदि कोई हमें अपराधी कहे, हमें कोई आतंकवादी कहे और कोई सिरफिरे, चाहे वो चैनल वाले हो या सिरफिरे ये विपक्ष के लोग, सनातन धर्म के विरोधी हो, चाहे वो हमें गुंडा कहे, हमें ये सब कुछ सहने के लिए तैयार है। लेकिन किसी भी जिहादी गुंडागर्दी करने वाले को हम ये सनातन धर्म के नाम का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। स्वामी यशवीर जी, अब सनातन धर्म के कितने लोग आकर इस मामले में आपका साथ देंगे ये तो आप ही जाने, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार का जो काम है, मुझे लगता है कि वो काम उनको करने देना चाहिए और साधु संतों का जो काम होता है वो काम साधु संतों को करने देना चाहिए। आधार कार्ड चेक करना ये आपकी जिम्मेदारी कतई नहीं है और उम्मीद यही कि कम से कम आप इस बात को समझेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। धर्म की ठेकेदारी करने वाले कुछ लोग सामने आ गए हैं और इस तरह की हरकत आधार कार्ड चेक करने की यकीनन कतई सही
नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना नाम बदलकर, पहचान छिपाकर दुकानदारी कर रहे हैं और इससे माहौल कांवड़ यात्रा के दौरान खराब हो सकता है। ऐसे में यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि हालात बिगड़ने नहीं पाए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। खबर पंजाब से है, जहां मान सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर खबर सामने आई है। विधायक संजीव अरोड़ा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। संजीव अरोड़ा को उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रिमंडल से कुलदीप धालीवाल का इस्तीफा। तो उपचुनाव में जीत कर आए हैं संजीव अरोड़ा और अब संजीव अरोड़ा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और इसके साथ ही संजीव अरोड़ा को उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी ने हाहाकार मचाया है। पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। लोगों की जान मुश्किल में आ गई। हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, आसमानी आफत ने लोगों को झकझोर के रख दिया है। जम्मू कश्मीर में सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में हालत बेहद खराब है। नदियां उफान पर, सड़कों पर सैलाब। सैलाबी सितम की हर तस्वीर आपको विस्तार से आगे दिखाएंगे। तो राजस्थान के झालावाड़ में हो रही भारी बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो मानसून का लुत्फ उठा रहे हैं। झालावाड़ के कानपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई। तेज बारिश और बाढ़ के बीच दूल्हे को शादी की रस्म के लिए ले जाया जा रहा है। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने जमकर डांस किया और माता पूजन की रस्म पूरी की। अब राजस्थान के ही जालौर की ये तस्वीरें आपके सामने। यहां मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। यहां बहने वाली वणधर नदी उफान पर है और नदी के तेज बहाव के बीच एक शख्स ने कार को पार कराने की जब कोशिश की तो इस बीच सैलाब में कार बहने लगी। कार चला रहे शख्स की जान बड़ी मुश्किल से बचाई जा सकी। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने तेजी दिखाई और कार ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। उधर छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ और बारिश का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रायगढ़ और कोरबा में भारी बारिश के बाद निचली बस्तियां जलमग्न। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। सड़कें तालाब में बदल गईं। लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान के सिरोही में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। नालों में भी पानी भरा हुआ है और इन हालात की वजह से आम लोगों के साथ साथ जानवरों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। कई मवेशियों की जान चली गई है। पानी के तेज बहाव में खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं जानवर। बहते हुए मवेशियों को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। और अब खबर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से है, जहां बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब हैं। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो दरअसल ऊना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घरों और स्कूलों में बारिश के पानी ने दस्तक दे दी है। इन हालात के बाद लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। देखिए कैसे घरों में पानी भरा हुआ है, स्कूल परिसरों में पानी भरा हुआ है, स्कूल के क्लासरूम्स में पानी भरा हुआ है। हर तरफ पानी का प्रहार। बाढ़ बारिश ने भारत ही नहीं चीन में भी तबाही मचा रखी है। चीन में पिछले कुछ समय से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ आ गई है। चीन के कई शहर टापू में तब्दील हो गए हैं। सुपर पावर का दम भरने वाला चीन कुदरत के आगे त्राहिमाम कर रहा है। चीन में पिछले एक सप्ताह से लगातार भारी बारिश हो रही है और इस वजह से यहाँ चीन के कई प्रांत बाढ़ की चपेट में हैं। ग्वांगडोंग प्रांत के बाद अब जो गुइझो और चीन का उत्तरी इलाका है, यहाँ भी बाढ़ का खासा कहर जारी है। तेज बारिश के बाद ये बाढ़ आई और एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए कैसे बाढ़ के तेज पानी में एक शख्स फंस गया जिसे बाद में रेस्क्यू किया गया। लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं भी चीन में आम हो गई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से चीन में पुल का एक हिस्सा भी टूट गया। तो दरअसल चीन से रेस्क्यू का एक वीडियो सामने आया।
ऐसा वीडियो जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, जहां एक बच्चा तेज बहती नदी में गिरा और फिर पानी के बहाव में बहने लगा, लेकिन वहां जो मौजूद लोग थे उन्होंने हिम्मत दिखाई और बच्चे को बचा लिया। ये उसी रेस्क्यू का वीडियो है। नदी की तेज धारा सारी कहानी बयां कर रही है। नदी में जो भी घुसेगा पानी में बह जाएगा। बच्चा बहकर पुलिया के नीचे जा चुका है। तस्वीरें चीन के पूर्वी इलाके के हानहुई प्रांत की हैं। सफेद कपड़े पहना ये शख्स बच्चे के लिए देवदूत बनकर आया। उसने बच्चे के शरीर का हिस्सा तब तक पकड़ा जब तक उसको बाहर नहीं निकाल लिया। अगर बच्चे से शख्स का हाथ छूट जाता तो हो सकता था कि बच्चे की सांसों का साथ भी उससे छूट जाता। इस दौरान बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए भारी भीड़ लग गई। जैसे ही बच्चा बाहर निकला, सबने राहत की सांस ली। तो मातृभूमि देख रहे थे आप एबीपी न्यूज पर। मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।